Welcome to Sushmita's science class. Here, science will be made so interesting and easy. You will all start loving it. Children, today we are going to study about the states of matter, that is, solid, liquid, and gas. Now, what is matter? Matter is anything that occupies space and has weight. It can be solid, like earth, a liquid, water, or a gas, oxygen, or we can say air. What is matter made up of? A matter is made up of tiny particles, very tiny units that are not visible by the naked eyes. These tiny units are called molecules. A molecule is the smallest unit of a substance that has all the properties of that particular substance. Now, see the molecular arrangement of solid. Solid, we can say ice is solid. In solid, the particles are tightly packed, so cannot move away from each other. That is why solids generally have a fixed shape. Solids have a definite shape, size, and volume, that is, the space it occupies. We can hold them in our hand. They have closely packed molecules which cannot move around. Solids have weight. Although they have fixed shape, we can sometimes change the shape by applying force. Say, for example, chalk is a solid, and if we break the chalk, the shape changes. That is, we are changing the shape by applying force. The second one is liquid, that is water. In liquid, the particles are not as tightly packed as in solids, so they can move and slide over each other. This makes liquids flow and take the shape of the container they are poured into. पर सॉलिड में देखो मॉलिक्यूल्स जो हैं इतने पास पास हैं कि इसके अंदर हम कुछ नहीं डाल सकते और ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बीच में स्पेस ही नहीं है. लिक्विड लिक्विड के बीच में हमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें गैप्स दिख रहे हैं. तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स पास पास तो होते हैं पर सॉलिड जैसा इतना पास भी नहीं होता और गैस मॉलिक्यूल्स की तरह इतने खुले भी नहीं होते. लिक्विड मॉलिक्यूल्स को हम माला की तरह सोच लेते हैं. जैसे माला में सारे मोतियां पिरोए हुए रहते हैं. ये मोतियां एक जगह से दूसरी जगह मूव तो कर सकते हैं पर वो एक दूसरे के साथ लगे भी रहते हैं. यहाँ ये मोती माला में पिरोए हुए हैं. इसको हम मूव कर रहे हैं. ये दूर तो जा पा रहे हैं पर एक दूसरे से छूट नहीं रहे हैं. इसीलिए ये लिक्विड जो है ये फ्लो करते हैं. वाटर, मिल्क आर लिक्विड्स. Liquids do not have a fixed shape and size. However, they have a fixed volume, that is the space they occupy. We cannot hold them in our hand. The molecules of liquid stick to one another. अभी जैसे मैंने दिखाया माला में वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं बट आर एबल टू मूव. पर वो इधर उधर मूव भी कर सकते हैं. हेंस लिक्विड कैन बी पोर्ड एंड कैन फ्लो. इसीलिए लिक्विड को हम डाल भी सकते हैं और वो फ्लो भी करता है. लिक्विड कैन फिट इनटू कंटेनर्स ऑफ एनी शेप. दे फाइंड देयर ओन लेवल इन डिफरेंट कंटेनर्स. जैसे अगर एक ग्लास पानी ले उसको अगर बॉटल में डाल दे तो बॉटल छोटा होगा तो वो पूरा भर जाएगा और अगर बॉटल बड़ा होगा तो जितना पानी का वॉल्यूम है उतना ही वो ऑक्यूपाई करेगा और वो बॉटल का शेप ले लेगा. अगर कटोरे में डाले तो कटोरे का शेप ले लेगा. नेक्स्ट इज गैस. In gases, the particles are far apart from each other and can move freely.
So gases can flow easily and can take up all the available space. जितना भी जगह गैस को दे दे उतना ही वो घेर लेता है. जैसे अगर हम घर के एक कोने में अगरबत्ती लगाते हैं पर बाहर तक उसका स्मेल पहुंच जाता है क्योंकि अगरबत्ती के स्मेल गैस के साथ फ्लो कर जाता है. Gases do not have a fixed shape, size and volume. We cannot see gases and cannot hold them in our hands. Although smoke is visible, we still cannot hold it. The molecules of a gas are very loosely packed and can move more easily than liquid molecules. Therefore, gas can flow and also expand to fill up space. अगर हम एक सिरिंज लेते हैं. चिल्ड्रन, ये मेरे हाथ में एक सिरिंज है. यहाँ 2.5 मिलीलीटर शो कर रहा है. 2.5 मिलीलीटर. अब मैं इस पिस्टन को पीछे खींच रही हूँ, यानी ये खाली जगह पर गैस भर रहा है, एयर भर रहा है और मैं 2.5 मिलीलीटर तक लेकर आती हूँ. अब मैंने यहाँ जहाँ से गैस अंदर आ रहा था उसको टाइटली बंद कर दिया है और पिस्टन को प्रेस कर रही हूँ और इसको 1 मिलीलीटर तक लेकर आई हूँ. यानी हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं. गैस का वॉल्यूम चेंज हो सकता है. उसको जितना जगह मिलेगा उतना ही जगह वो घेर सकता है. देखो, मैं पिस्टन को छोड़ देती हूँ, वो अपने आप पीछे पुश हो जाएगा और 2 मिलीलीटर के करीब, 2 मिलीलीटर से थोड़ा सा ज़्यादा उसने जगह घेरा है. जबकि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने 2.5 मिलीलीटर पुश किया था. अभी भी मैंने यहाँ बंद करके रखा है. दैट मीन्स वी कैन कंप्रेस गैस. इसी जगह पर अगर मैं पानी लेती हूँ, अब मैंने इसको बंद किया है. वाटर का वॉल्यूम फिक्स होता है. अब हम पुश करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. अब मैं पिस्टन को पुश कर रही हूँ. पिस्टन आगे नहीं पुश हो रहा है. आई एम ट्राइंग टू पुश द पिस्टन, पर पिस्टन आगे पुश ही नहीं हो रहा है क्योंकि वाटर का वॉल्यूम कम नहीं हो सकता. वाटर को हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं और अगर हम इसको सामने से छोड़ देते हैं तो ये पानी बाहर फ्लो कर रहा है. तो हवा थोड़े से जगह में भी कंप्रेस हो जाता है. सॉलिड का वजन हम वे कर सकते हैं. लिक्विड के वजन को भी हम फील कर सकते हैं. अगर बॉटल पूरा पानी से भरा हो तो वो हैवी होता है और अगर पानी से भरा नहीं है तो वो हल्का होता है. सिमिलरली एयर का भी वेट होता है. गैस ऑल्सो हैव वेट. ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एयर हैज़ वेट, यानी हवा का भी वजन होता है. ये हमने एक स्टिक लिया और स्टिक के दोनों तरफ फुलाया हुआ बैलून बांध दिया और ये थ्रेड लगाकर इस स्टिक को बैलेंस कर दिया. देखो, ये स्टिक बिल्कुल सीधा है, यानी दोनों तरफ वेट सेम है. अब हमने एक बैलून को प्रिक करके फोड़ दिया और उसमें हवा नहीं है. अब ये जो स्टिक है ये झुक गया है उस तरफ जिस बैलून में अभी भी हवा है, यानी हवा में वेट है, इसीलिए हवा भरा हुआ बैलून नीचे की ओर झुक गया और जिस बैलून में हवा नहीं है वो ऊपर चला गया है. दिस शोज एयर हैज़ वेट. इसी से पता चलता है कि गैस का भी वेट है. If you found the video useful, like, share and subscribe.